So yeah, so who can go for the summarization for yesterday's class? Anyone? Can I? Sahil, yeah, sure. At first we studied about ADFS, that is Active Directory Federation Service, which provides safe authentication access to any domain, device, system, or any data within the Active Directory. Its benefit is of reduction in IT support and organizational efficiency and improve the security. And then we studied about the Azure Site Recovery. When we deploy resources in a data center, and if let the data center destroy due to any disaster, then we will lose the data and cannot access the data. So if there will be a server down in the industry, then there will be a huge loss. For this, we use the backup server. If the primary server goes down, then we use the backup server. In recovery service vault, we enable the site recovery. With this, we make the exact replica or copy in another resource group of that virtual machine or the server. When we enable the site recovery, the data of the virtual machine caching into the cache memory. If the center fails, we click the failover. Then the backup of the virtual machine will start in another source. We can make backup at both the same region or any another region. And we do the backup of those virtual machines whose security is not trusted, because in trusted VM, it already gives the security that the server will not fail. So we set the virtual machine security as standard. Then we created a recovery vault in another resource group, then enable the replication and add the replication setting. And then we studied about the types of backup, that is class consistent and R consistent. In class consistent, it tells that the backup is taken when there is a sudden class occur, and it do not take the backup of those data which are currently in running state or read-write operations are taken. So it sometimes may be inconsistent, but in app consistent, it takes the backup all that data and also the data which is in the running state. So it is consistent. Then we studied about the Azure Traffic Manager, which basically manages the traffic between the virtual machines connected to its backend, and it's the many criteria according to its routing method. It is used because CDN has some demerits, like it is expensive, and some places there is no POP, so at that places latency is also remain high. And so then we studied about the types of routing method, like priority, weighted, geographic, performance, multi-value. In priority, we set the priority of the virtual machine, which is unique, and it will send the traffic to those virtual machines whose priority is the highest. And if it is in unhealthy state, then it will send the traffic to the second highest. Then in weighted, it divides the traffic between those virtual machines, that what amount of traffic should go to which game. Then in performance, it takes that which virtual machine has less latency, and in geography, it sends the traffic to that VM to which the client is nearer to that server according to the geography. And in multi-value, here we at first it select all the healthy servers, and then it select the and one server random. So for this, we created group game and connected to the traffic manager. Then we change the routing group to see the result. Thank you. Okay. Thank you, Sahil, I guess. Yes, sir. Okay, thank you, Sahil. So it was good to see many students working till late night yesterday. I got messages till 1:30 p.m. to 1:30 a.m. I guess 1:30 a.m. 2 a.m. I got messages till that much late. So it was good to know that you guys were working hard on your end, and it was really highly motivating for me as well, and for Sumit as well, that you have been working so late and working hard on the topics that we have covered yet. Okay, so we have covered almost all the Azure topics till yesterday. Means whatever topics we covered yesterday, it covered all of the Azure services that it provides, mostly that are used in the industry. So what I'm planning to do tomorrow is that
I will be having a grand recapitulation session of all the services that we have learned yet till Friday. Okay, from the starting of the class or from the beginning of the course till Friday, I will be having a grand revision or a grand summarization session. It will be a more kind of an Viva session for you all guys. So just make it clear, all participants over here. So for tomorrow's class, the first half will be only for the revision purpose of all the services that we have learned yet. So I would be voluntarily telling out the names, and you have to unmute and just answer the questions or answer the services that it is exactly used for, or anything in summarization you can tell upon. But it would be on a random basis, so it won't be that I would be asking to Sahil or Adarsh or anyone. Okay. So everyone just make it clear, all the participants, that tomorrow morning it would be a grand recapitulation session of all the services that we have learned yet, and so that everything you get revised. So you have time of today as well, so you can just have a look of all the notes. If suppose you have prepared, you can just go through it so that we can have it. So because there was an yeah. So there was basically an section where you will be evaluated on the daily performance was there. But apart from it, there was something for the Viva as well. So we have to conduct that as well. So tomorrow, everyone be ready. The first half of the class would be the thing that I just said. Okay. So because we have almost completed all the services that are used in industry for Azure. Okay. From today onwards, everyone clear? Everyone? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है. So now I think so we can get started with today's class. So from today onwards, from today is 22nd, I guess, or 21st, 22nd. And your classes are ending on 28th of July, I guess. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So from 22nd of July to 28th of July, now you will be getting to know more about the DevOps side. Okay. So now you know whatever cloud platforms like Azure gives the benefit to you. Okay. Now we'll be talking more in depth of the DevOps profile, that what are the different other tools that are being used inside a virtual machine to make things easier. Okay. So from today onwards, there would be topic that would be very, very, very new to you. That you have only, I guess you have only heard the terminology, but now you will be getting some hands-on as well. Okay. So the first topic for today's, we'll be keeping, we won't be keeping the particular topic of today's, that is Docker. Everyone heard of this Docker? yes, sir. Chalo. So from today, sorry, for today and tomorrow also, after the recapitulation or the Viva session, we'll be moving on with the Docker concept only. So today, we will be only seeing the introduction and basic setup. Okay, and basic setup. And then we'll be wrapping up today's class. Because I think you have to do a lot of revision for tomorrow's class as well. ठीक है. सो आज हम लोग बस डॉकर और उसका बेसिक सेटअप देखने वाले हैं कि पहले देखते हैं कि डॉकर होता क्या है, डॉकर आया क्यों मार्केट में, ये एवरीवन टॉक्स अबाउट डॉकर एग्जैक्टली डॉकर है क्या. ठीक है. सो वी विल बी सेइंग एवरीथिंग. Just patiently listen to me and just be attentive, because I'm talking because I'll be talking in a very general term. Okay, in simple terms, that what we use and how do we really do our things in industry. ठीक है. चलो, and try to be interactive. ठीक है. अगर मैं कहीं कुछ पूछूं हाँ या ना तो जवाब देना, और if suppose you have something to share, you can share as well. चलो. लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता था, मतलब आज से कुछ दिन कुछ सालों पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता था, या फिर अभी भी कैसे होता है. ठीक है, वो मैं बताता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारे डेवलपर्स रहता है. ठीक है. डेवलपर्स को एक तुम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं सर. नहीं, सर.
सेकंड थर्ड सेमेस्टर में तो होगा ना यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सर नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर है, मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब फोर्थ ईयर में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? नहीं sir, सर, fifth थर्ड ईयर semester. में। Third year. थर्ड ईयर में है, ठीक है। तो ना एक SRS करके चीज होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसमें वो हर चीज डिफाइन होता है। अगर मान लो तुम्हारा कोई एप्लीकेशन बन रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन वुड ऑफ एनी काइंड हो सकता है, ठीक है, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, देखो एनी काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, या फिर आईपैड के लिए तुम्हारा कुछ हो, या टैब के लिए कुछ एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई भी चीज का अगर मान लो उसे एप्लीकेशन अगर बोला जा रहा है, अगर उसे एप्लीकेशन बोला जा रहा है, तो इन जनरल उस एप्लीकेशन का जब हम लोग का इनिशियल फेजेस होता है, जब हमारा एप्लीकेशन बनता है ना, तब ना उस टाइम पे हम लोग करते क्या, हम तुम्हें जनरल एक मेथोडोलॉजी बता देते हैं कि अगर जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जब व्हाट्सएप बन रहा होगा या फेसबुक बन रहा होगा, तो इनिशियली किसी ने तो कुछ सोचा होगा ना कि ये एप्लीकेशन करेगा क्या। अरे अगर तुम लोग के पास भी अगर कुछ स्टार्टअप आइडिया है, या फिर तुम लोग कुछ एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करना चाहते हो, तो तुमने इनिशियली क्या सोचा होगा कि इस एप्लीकेशन ये करेगा क्या, और ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अरे एवरी एप्लीकेशन यूजुअली क्या करता है, वो एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तुम कोई भी एक एप्लीकेशन उठा लो और तुम एनालाइज करो कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या कस के थोड़ा जोर से बोलो। So texting with people from far away or distance ठीक है, learning. चलो, मतलब तुम पीयर टू पीयर कनेक्शन, या फिर तुम उसे चैट के लिए तुम बोल सकते हो कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो व्हाट्सएप हमारा कम्युनिकेशन के लिए कर रहा है, तो उसी तरह कोई भी और एक एप्लीकेशन लेते हैं। चलो अभी के मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, एक वेब एप्लीकेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो चलो ये वेब एप्लीकेशन whiteboard.office.com, ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ये मतलब कि हम बेसिकली हमारे स्क्रीन को एक व्हाइट बोर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है, एंड आई एम एबल टू राइट ऑन इट, ठीक है, राइट सर इंटरैक्शन। चलो ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी विंडोज और एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नाम बोलो फॉर एग्जांपल, जो तुम्हारे मशीन में हो। VLC मीडिया प्लेयर है सबके में, Sir, Yes. Microsoft Shop. ठीक है, उसको भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो ले लो या VLC मीडिया प्लेयर ले लो, वो क्या रिजॉल्व कर रहा है, हमारा कौन सा इशू रिजॉल्व कर रहा है कि हमें वो वीडियो स्ट्रीमिंग का कैपेबिलिटी दे रहा है, ठीक है, एंटरटेनमेंट, या फिर मतलब उसका बेसिक काम क्या है, द बेसिक यूज केस ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज दैट इट्स अलाउइंग मी टू स्ट्रीम अ पर्टिकुलर MP4 फाइल, करेक्ट, ठीक है। तो सारे एप्लीकेशन ना यार कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले तो हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए। मैं तुम्हें ना ये थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जब तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे अपने लेटर ऑन सेमेस्टर्स में ना, दिस वुड बी एन वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा तुम लोग को थ्योरेटिकल लगेगा, बट जब तुम लोग इंडस्ट्री में आओगे एंड यू विल बी वर्किंग ऑन सम एप्लीकेशन, तब तुम्हें पता चलेगा चाहिए SRS क्या है, ठीक है। सो दिस SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर लेना कि ये SRS डॉक्यूमेंट क्या कहता है, SRS डॉक्यूमेंट बनता कैसा है। तो ये मोस्टली जो है ना, ये SRS जो है ना, ये मोस्टली हमारे प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एप्लीकेशन बनता है ना, तो उसके प्रोडक्ट मैनेजर्स होते होंगे। तुम लिंक्डइन पे देखोगे तो वो लिखा होगा प्रोडक्ट मैनेजर एट स्विगी, प्रोडक्ट मैनेजर एट ओयो, प्रोडक्ट मैनेजर एट बाईजूस, ठीक है। सो दीज प्रोडक्ट मैनेजर्स व्हाट दे डू, दे मैनेजेस द प्रोडक्ट, उनको सब कुछ पता होता है रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, भले उन्हें कोडिंग ना आता हो, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ये SRS बनता है, फिर ये SRS डेवलपर्स को शेयर किया जाता है। अब डेवलपर्स को शेयर किया जाता है इन सच अ फॉर्मेट दैट दे कैन फॉलो एंड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, कि कौन सा डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फॉलो करना है,
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डेवलपर के पास सब कुछ आ गया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा और ये रहा मेरा पहले ये फीचर बनेगा, उसके बाद ये फीचर बनेगा, उसके बाद ये फीचर बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप जब बन रहा होगा तो भले उसमें पहले सबसे पहले आया होगा लॉगिन बनाना है कि नंबर से ओटीपी लॉगिन करना है, फिर उसके बाद नंबर सेव करना है चैट करने के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा ऑडियो कॉल का फीचर ऐड हुआ होगा, फिर वीडियो कॉल का फीचर ऐड हुआ होगा, फिर स्टेटस का फीचर ऐड हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस। ठीक है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स कोड करते हैं। ठीक है। डेवलपर्स करते हैं क्या बेसिकली, ये मेरे को कोड करके देते हैं। ठीक है। तो क्या एक ही डेवलपर्स रहते हैं, हो सकता है एक ही डेवलपर रहे या हो सकता है मल्टीपल डेवलपर रहे। ठीक है। तो सब कोड करते हैं। ठीक है। ये कोड जो है, ये कोड जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे जाता है, वीसीएस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल गिटहब, अरे सब लोग अपने कोड को गिटहब पे पुश करते हैं ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. गिटहब पता है सबको क्या होता है, क्या ये भी बताना पड़ेगा, Yes, sir, पता है। बता दूं क्या? देखो Yes, गिटहब sir. जो है ना, इट्स वन ऑफ माय वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल होता है। एक गिटहब जो होता है ना वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेवलपर 1 ने भी कोड पुश किया, डेवलपर 2 ने भी कोड पुश किया। ठीक है। ये सब बोलते हैं हम लोग डेव 1, डेव 2, डेव 3, डेव 4। अब मान लो ये चारों डेवलपर ने एक ही साथ कोड पुश कर दिया तो वो तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लो ये डेवलपर 1 एक कोड में लिखा कि दिस ये कोड रन करता है फॉर एग्जांपल फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, और उसने क्या किया उसी फाइल में अरे यार गिटहब का कंसेप्ट फिर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। बस समझ लो ना ये वर्जन कंट्रोल के लिए काम आता है। गिटहब का टॉपिक किसी और दिन के लिए रखता है, उस टाइम पे तुम लोग पढ़ लोगे। बट बस इतना समझ लो कि गिटहब इज यूज फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे हमारे सारे डेवलपर्स कोड को पुश करते हैं। ये दिखता कैसा है, हम चलते हैं अपने गिटहब पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन या फिर बहुत सारा कोड पुश करके रखा हुआ है, तो एक इस पे चलते हैं। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने ब्रांचेस है अभी, एक दो ब्रांच है, सिलिकॉन बैच 2 करके ब्रांच है, सिलिकॉन टेस्ट करके ब्रांच है और एक मेन ब्रांच है। ठीक है। अब तुम देखोगे मेन ब्रांच में मेरा सारा कोड्स पड़ा हुआ है। अब मैं इसके अंदर नेविगेट करता हूँ, ये देखो ये बताता है कि ये एप्लीकेशन करता क्या है। This is an iOS NASA Gallery app which allows to shows the picture in a sorted way that contains the description in a navigated view। कौन सा टेक्स्ट ऐप फॉलो है, आर्किटेक्चर क्या है, डिपेंडेंसी पैकेजेस क्या है। ठीक है। क्लिक ऑन नासा गैलरी। अब उसके अंदर जाके देखो यहाँ पे बहुत सारा कोड्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट व्यू डॉट स्विफ्ट खोलो तो देखो यहाँ पे कोड है, मैं ऑथर हूँ इसका। सो ये होता क्या है, यहाँ चलते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैं अकेला डेवलपर हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे डेवलप किया, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं ना सब अपना अपना ब्रांचेस बनाते हैं। ठीक है। लेटेस्ट कोड का वो ब्रांच बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ना एक मर्ज रिक्वेस्ट या पुल रिक्वेस्ट करके एक चीज होता है, वो क्या करते हैं ना उस ब्रांच को जब फाइनली उस पर काम हो जाएगा तब जाके ये मेन पे मर्ज कर देते हैं कि भाई ये रहा तुम्हारा लेटेस्ट कोड। ठीक है। तो ये होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम या फिर ये गिटहब तुम बोल लो। और हम लोग जैसे कि थोड़ा दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय रिपोजिटरी। मतलब ये जो मैं अभी करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ईयरजो, इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। जैसे नासा गैलरी आपका ही ले लेते हैं। ठीक है। अब नासा गैलरी आपके तुम हिस्ट्री पे जाओगे ना, तब देखना कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, कुछ यहाँ चेंजेस किया है। सी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, एडेड टेस्ट केसेस। देखो मैंने कितना सारा कोड चेंजेस किया है, और ये सब कोड चेंजेस को ना मैं यहाँ से देखो ये भी फेच ओरिजिन है। जब मैं कुछ चेंजेस करूंगा ना तो यहाँ से ये पुश हो जाएगा, और पुश किस ब्रांच में होगा, मेन ब्रांच में होगा। तो ऐसे ही देखो हमारे पास कितने सारे ब्रांचेस है, सिलिकॉन बैच 2, सिलिकॉन टेस्ट। अब मैं कुछ एक लाइव तुम्हें मैं अपना दिखाता हूँ, कुछ एक लाइव क्लाइंट प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिलीवर्ड। इसमें कितने ब्रांचेस थे, सी द नंबर ऑफ ब्रांचेस, एंड ऑल दिस ब्रांचेस वेयर जस्ट अ फीचर। ये देखो मैं फीचर पे काम कर रहा हूँ तो ये फीचर ब्रांचेस करके कट 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 कर बनता गया। सी द नंबर ऑफ फीचर्स दैट आई वर्कड अपॉन। सो बेसिकली
ये ऐसे ही काम होता है, इसके बारे में और पढ़ना, बट लेट इट वेरी सिंपल नाउ। ठीक है, हाँ। GitHub is used to maintain repositories to store codes and also track the changes made it with a version control system. By using Git, we can modify or revert the changes to the code. Perfect. ठीक है, so that's an basic definition of particularly the GitHub. ठीक है, अब डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने तो GitHub में कोड पुश किया। ठीक है, कोड पुश किया, हमारे डेवलपर्स ने कोड पुश किया। अब उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है कि किसी ने टेस्ट भी किया होगा। टेस्ट मतलब कि बस कोड को टेस्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल PR पे सारे कोड को देखा होगा कि चलो कोड में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सारे कोडिंग स्टैंडर्ड सही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बिल्ड किया होगा। जो हमारा फाइनल जो एक कोड रेडी होता है, कोड बेस रेडी हुआ होगा, तो उसने बिल्ड किया होगा। तो अगर मान लो एक वेब एप्लीकेशन है तो एक वेबसाइट बना होगा। अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन है और वो एंड्रॉयड है तो .apk बना होगा, APK। और अगर वो iOS एप्लीकेशन है तो IDSA करके कोई फाइल बनता है, वो चेक किया होगा। अगर वो एक डेस्कटॉप फाइल है, फॉर एग्जांपल विंडोज फाइल है, तो कौन सा फाइल बना होगा, .exe। तुम लोग जब भी कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो .exe फॉर्मेट में रहता है, हाँ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये डेस्कटॉप वाली .exe। तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन होता है वो .apk फॉर्मेट में रहता है, उसका जो बिल्ड रहता है वो .apk फॉर्मेट में रहता है। एवरीवन नोज अबाउट दिस .apk। अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन होता है एंड्रॉयड के लिए, वो कम्स इन एन .apk फॉर्मेट। तो अगर मान लो किसी एप्लीकेशन का अगर तुम्हें प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली सर्च इट ऑन वेब दैट कैन आई हैव द यूट्यूब APK। तो तुम्हें यूट्यूब का APK मिल जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल इट। फॉर एग्जांपल बहुत कोई मॉडेड यूट्यूब चलाते होगे। मॉडेड यूट्यूब मतलब होता है वही क्रैक्ड वर्जन जिसमें हमारा ये नहीं आता है, क्या बोलते हैं, YouTube Advanced. हाँ, यूट्यूब Advanced इज वन ऑफ देम। उसे में मॉडेड ये बोला जाता है, एप्लीकेशन बोला जाता है। सो बेसिकली दैट इज द क्रैक्ड वर्जन ऑफ यूट्यूब, जिसमें हम क्या नहीं आता है यार, वो ऐड नहीं आता है। ठीक है, ऐड नहीं आता है। यू कैन रन इट ऑन दी, मतलब जितना भी प्रीमियम के फीचर्स है ना वो तुम्हें फ्री में मिल जाता है वो यूट्यूब Advanced से। ठीक है, आई होप मोस्टली सारे लड़के यूज करते होंगे, शायद लड़कियों को उतना नॉलेज नहीं होगा। गर्ल्स, डू यू हैव नॉलेज ऑफ दिस मॉड APK? Spotify का मॉड रखते हैं तो वो तो अच्छा, लड़की लोग रखी हैं। गर्ल्स, डिड यू नो अबाउट दिस Advanced यूट्यूब और दिस मॉडेड APK, क्या होता था? एनीवन? Sir, long ago I used to use word now in nothing. क्या बोली स्वाति? तो बहुत पहले यूज करते थे, अभी लेकिन नहीं करते। अच्छा, अभी यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब भी हमारा कोड पुश हो जाता है, PR मर्ज हो जाता है कि हाँ हमारा कोड क्वालिटी बहुत सही है, मैं बहुत सही कोड लिखा हूँ, ठीक है, उसके बाद बिल्ड जनरेट होता है। ठीक है, बिल्ड जनरेट होता है तो बिल्ड, अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन तो APK हुआ, अगर विंडोज एप्लीकेशन है .exe फाइल हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये टेस्टिंग के लिए जाता है। टेस्टिंग के लिए जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक टीम X जो है ना इसे टेस्ट करता है। अब ये .exe फाइल है फॉर एग्जांपल, तो ये मान लो ये विंडोज पे चलेगा, तो हमारे पास मल्टीपल मशीन्स भी तो होने चाहिए कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि विंडोज 11 पे चलेगा और विंडोज 10 पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हो सकता है हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हो विंडोज। ठीक है, ये किसी के पास 10 है, किसी के पास 11 है, किसी के पास प्रो वर्जन है, या फिर किसी के पास अभी भी 8 है। ठीक है, तो हमारा ये जो मशीन है या फिर ये जो एप्लीकेशन है, ये हमारे सारे विंडोज के लिए चलना चाहिए, एवरीवन। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम कुछ एक एप्लीकेशन बनाओगे और वो सिर्फ एक ही विंडोज पे चले, दैट इज विंडोज 11। तब तो तुम्हारा बनाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लोअर वर्जन्स को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और हो सकते हैं कि हमारे कुछ यूजर जो है वो विंडोज 10 पे भी हो, विंडोज 8 पे भी हो, विंडोज प्रो पे भी हो। मतलब प्रो वर्जन पता नहीं आता है कि नहीं आता है। आई हैव एन लार्जर आइडिया ऑन दी मैक साइड, क्योंकि मैं पिछले अराउंड 8 साल से मैं मैक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर मान लो .apk फाइल है, तो अभी तुम लोग का एंड्रॉइड का करंट वर्जन क्या चल रहा है, मेरे को इतना बताओ। हु कैन से व्हाट इज द करंट एंड्रॉइड वर्जन? Android 13. एंड्रॉइड 13 चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हारा .apk फाइल बना, तो अगर मान लो तुम मिनिमम जो एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट कर रहे हो वो मान लो 10 या 11 कर रहे हो, फिर चलो 10 कर रहे हो, तो तुम्हारा जो एंड्रॉइड, कुछ तुम ऐसे डिवाइसेस उठाएंगे जिसमें एंड्रॉइड 10 होगा,
उस पर चलना चाहिए तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन, 10 में चलना चाहिए, 11 पे चलना चाहिए, 12 पे चलना चाहिए और 13 पे भी चलना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो कि जो तुमने टीम एक्स ने टेस्टिंग किया, उसने सारे डिवाइसेस पे तो टेस्टिंग कर लिया और सारे डिवाइसेस पे टेस्टिंग सही हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तुम ये फर्दर ये टीम एक्स मान लो ये टीम वाई को फॉरवर्ड किया कि भाई मैंने तो कर लिया है अपने एंड से टेस्टिंग, अब आप लोग देख लो अपने एंड पे। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने फर्दर डिवाइसेस पे, मान लो इनका भी विंडोज का बहुत सारे वर्जन होगा, ठीक है, विंडोज का बहुत सारे वर्जन होगा। अब जब इन्होंने टेस्टिंग किया, इन्होंने पास कर दिया कि भाई हमारा जो क्वालिटी एनालिसिस था, जो इन्होंने क्यूए बोलते हैं, हमारे एंड से क्यूए तो परफेक्ट है। अब ये फाइनल टीम वाई के पास आया होगा, तब जब इन्होंने टेस्ट करने गया ना, तब यहाँ पे देखा होगा यहाँ एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। अब चलने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, बताओ मेरे को। ना चलने का सबसे डिपेंडेंसीज, ठीक है, डिपेंडेंसीज किस पे होंगी? सर वो दूसरे सिस्टम का अलग डिपेंडेंसीज की वजह से वहाँ पे चल रहा होगा जिस पे एप्लीकेशन डेवलप हुआ था, बट यहाँ पे आने के बाद वो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जैसे कि कोई एसडीके वर्जन हो गया क्या फिर। ठीक है, चलो बढ़िया है। मान लो कि अगर ये जो मान लो मेरा जो एप्लीकेशन बना ना, इस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग मोस्टली जब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि अगर मान लो कुछ बना बनाया मिल जाए तो बढ़िया है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे जो हमारा बॉटम कार्ड खुलता है ना, बॉटम कार्ड, ठीक है, वो मोस्टली सारे मतलब कि एंड्रॉयड और आईओएस क्या करता है ना, वो बॉटम कार्ड बाय डिफॉल्ट देता नहीं है। तो उसके लिए ना आपको ना एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, बॉटम कार्ड करके, फॉर एग्जांपल बॉटम कार्ड करके वो लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। उसको यूज करोगे तब तो आपका यहाँ पे बॉटम कार्ड दिखेगा और यहाँ पे अपने कंटेंट्स देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो ये मान लो कि एक मेरा डिपेंडेंसी है, ये एक मेरा डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो टीम एक्स ने टेस्टिंग किया होगा इस सारे विंडोज मशीन में या फिर सारे एंड्रॉइड वर्जन्स पे, तो उनके सारे जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज थे ना, वो प्री इंस्टॉल्ड होंगे, डिपेंडेंसीज प्री इंस्टॉल्ड होंगे। और ये डिपेंडेंसी इनके साथ वो मैप कर गया, ये एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी इनके साथ मैप कर गया, तो इसलिए ऑन ईच सर्वर ये इनका काम कर गया। ठीक है, तो ये भी कोई सिस्टम रहा होगा ना। अब वही मान लो टीम वाई के पास जो सिस्टम था उसमें वो डिपेंडेंसी था ही नहीं। अब उसमें वो डिपेंडेंसी था ही नहीं, तो अब वो एप्लीकेशन रन कहां से करेगा? बात सही है कि नहीं? एवरीवन बी ऑन द सेम पेज। मैं काफी जनरल टर्म से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे विंडोज में, अगर मान लो तुम्हारा एक एप्लीकेशन बन रहा है जिसमें जावा का डिपेंडेंसी है, कि उसमें जावा तो जरूर होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम में, तब मैं एप्लीकेशन चलूंगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या तुम किसी का विंडोज मशीन उठाओगे फिर उसमें जावा इंस्टॉल करोगे? वैसे करना तो वही चाहिए ना, कि अब वो बोल रहा है जावा होना चाहिए, अब वो डिपेंडेंसी है जावा का, मान लो जावा 8 का डिपेंडेंसी है, और वो टीम एक्स वाले सारे सारे मशीन्स में था और टीम वाई वाले में किसी मशीन्स में था नहीं। अब ये जो यहाँ काम कर रहा है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो अब बताओ इसे पास करेगा कि नहीं करेगा, या फिर ये टीम वाई कैसे इसे टेस्ट करेगा? ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है कि भाई चलो हम फिर मल्टीपल वर्चुअल मशीन खरीद ले या फिर मल्टीपल हार्डवेयर खरीद ले और हम सबको वहां पे कॉन्फ़िगर करके सब कुछ दे दें। तो बट इज दैट फीजिबल? क्या ये फीजिबल है? कितना कॉस्टिंग पड़ जाएगा? जितना हमें यहाँ पे इस एप्लीकेशन को बनाने का कॉस्ट नहीं पड़ा, उससे ज्यादा तो हमें ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट या फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने में मेरे को कॉस्ट पड़ गया। ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही कॉमन यूज्ड लाइन है कि डेवलपर्स क्या बोलते हैं क्लाइंट को, दैट इट वर्क्स ऑन माई मशीन। ठीक है, डेवलपर बोलता है इट वर्क्स ऑन माई मशीन, क्यूए बोलेगा इट वर्क्स ऑन माई मशीन, बट क्लाइंट बोलेगा इट डजंट वर्क ऑन माई मशीन। ठीक है, तो क्या जब भी अगर ये जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, भाई ये तुम्हारे मशीन में काम करके क्या फायदा है? ये अल्टीमेटली किसके मशीन में काम करना चाहिए? क्लाइंट के मशीन पे काम करना चाहिए। अब तुम्हारे मशीन पे काम करे, हम थोड़ी ना तुम्हारा मशीन उठा के क्लाइंट को दे देंगे। ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी इश्यू से हटने के लिए, इस डिपेंडेंसी इश्यू से बचने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया
कि क्यों ना हम एक काम करें, अभी मैं डॉकर के कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं थोड़ा रब करता हूँ यहाँ से, आई विल जस्ट इरेज इट। यहां तक सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एवरीवन, एवरीवन, क्योंकि हम लोग यहाँ Yes, sir. अभी हम Yes, रूट कॉज समझ रहे हैं कि ये डॉकर आया क्यों, ठीक है। तो एक हम लोग क्या किए, तो इस इशू से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए हम लोग ने क्या किया ना, एक बड़ा हार्डवेयर सेटअप किया, एक हार्डवेयर सेटअप किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 16V CPU का हमने हार्डवेयर सेटअप किया या खरीदा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस पे OS डाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर मतलब क्या होता है पता है सबको? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या होता है, कोई डेफिनेशन दे सकता है? एनीवन? Anyone who can give the definition of virtualization, hypervisor? ये hypervisor virtualize the machine. हाइपरवाइजर वर्चुअलाइज करने के लिए होता है, तो वर्चुअलाइज क्या होता है बताओ मेरे को? We can use the machines that are in other place virtually in our from our system or connect through our system. चलो मैं तुम्हें काफी जनरल टर्म से बताता हूँ। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी फिजिकल सिस्टम को हम, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आई कैन कन्वर्ट माय फिजिकल सिस्टम इनटू मल्टीपल वेरियस वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। अगर मेरे पास एक हार्डवेयर पड़ा हुआ है, उस हार्डवेयर के ऊपर पक्का एक कुछ ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर लगा देने से या फिर वर्चुअलाइजेशन करने से का मतलब क्या होता है, आई कैन क्रिएट मल्टीपल VMs ऑफ इट, ठीक है। ये सुमित ने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में तुम्हें बताया होगा। एवरीवन, डू यू रिमेम्बर दैट? उसने Yes, sir. वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर नहीं बताया था क्या? Yes, या sir. हाँ सर बताए। भूल गए तुम लोग? ठीक है, चलो मैं फिर से बताता हूँ, काफी जनरल टर्म्स में बताता हूँ, ठीक है। मान लो कोई भी एक हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक फिजिकल मशीन है, जो तुम्हारा फिजिकल लैपटॉप है, उसके ऊपर एक OS डिस्क है, ठीक है। अब तुम लोग उसके वर्चुअलाइजेशन करना है। वर्चुअलाइजेशन करने का मतलब ये होता है कि तुम उस फिजिकल सिस्टम को यू आर कन्वर्टिंग इट टू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। तुम उसे स्पेसिफाई कर दो कि तुम्हें इतने जीबी का तुमको रैम होना चाहिए, तुम्हारे इतने जीबी का ये स्टोरेज होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन आउट ऑफ इट, and this hypervisor is one of the tool that is used for virtualization, ठीक है। अब ये वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब हमारे पास इमेजेस बन गए, एक दो मान लो हमने 3 इमेजेस बना लिया, ठीक है। 3 इमेजेस बना लिया और इन सबका कुछ कुछ एक साइज रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा 64 GB था इन टोटल, हमारा रैम डिस्क हमारा 64 GB था, तो हमने इसे 8 दे दिया, इसे मान लो 32 दे दिया, बचा कितना? अरे 32 + 8 40, बचा कितना? 24 ना, ठीक है। इसको मैंने 24 GB का रैम डिस्क दे दिया, ठीक है। अभी तक हम डॉकर के कंसेप्ट पे गए नहीं है, ठीक है, डॉकर के कंसेप्ट में गए नहीं है, ठीक है। तो अब इसने हाइपरवाइजर लगा दिया, हमारा वर्चुअल मशीन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन पे हम लोग सब कुछ सेटअप कर सकते हैं, सारे डिपेंडेंसी डाल सकते हैं, और ये पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन इन फॉर्म ऑफ हम लोग इससे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और तुम्हें पता है कि इमेज क्या होता है, और इस इमेज से तुम लोग एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने इस वर्चुअल मशीन बनाया, इसके इमेज से आई कैन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। अब इस इमेज में तो सब कुछ आ गया ना, इस इमेज में हमने जितना भी हमने इसमें सेटअप किया था ये सब कुछ आ गया इस पर्टिकुलर इमेज से, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो डिस्क मैनेजमेंट होता है ना, डिस्क मैनेजमेंट, देखो भले ही इस वर्चुअल मशीन को 8 GB का जरूरत ना हो, ये हो सकता है कि कोई एक एप्लीकेशन 1 GB में भी रन करता हो, इसको पूरे 32 GB का रिक्वायरमेंट ना हो, और इसको हो सकता है 24 से ज्यादा का रिक्वायरमेंट हो। तो क्या कभी हम ऐसा हो सकता है कि इसको उठा के इसका कुछ स्टोरेज यहाँ दे दें? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे नॉर्मल वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इमेजेस एक बार जो परसिस्ट कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, जो हमने इसे साइज दिया है वो हमेशा उसी साइज पे लेके ये अपने आप को रखते हैं, ठीक है। तो
तो ये मेरा डिसएडवांटेज ये हो गया कि चलो हमने वर्चुअलाइजेशन कर लिया, हमने हाइपरवाइजर लगा दिया, हमारा वर्चुअल मशीन बन गया, हमारे उस इमेज से उस पर्टिकुलर इमेज से आई कैन अगेन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन्स। हमें मेरे पास तो ये प्रोसेस रेडी हो गया, लेकिन एक बार जो ये 8 GB 32 GB और 24 GB अलॉट हो गया, देन हम ये से फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हारा ये 16 CPU का था, ये 8 GB का ले लिया, ये 32 GB का ले लिया, अगर मान लो इसका रिक्वायरमेंट पड़ गया 48 GB का, तो ठीक है, अब ये 32 GB में यूज 4 ही GB हो रहा है, लेकिन तुम इसका रेस्ट, ये ऐसा नहीं है कि इसका उठा के तुम यहाँ पे कर सको। ठीक है, तब आया मेरा कंसेप्ट डॉकर का। ठीक है, अब डॉकर क्या करता है वो मैं बताता हूं। अभी जैसे ये इमेज में बाइंड हो गया कि हाँ ये पूरा इतना इमेज में तो इतना साइज लेके रखेगा। अब ये डॉकर क्या करता है ना, वो समझते हैं। ठीक है, डॉकर को इन जनरल टर्म्स हम लोग उसे ये भी बोलते हैं, मैं पूरा इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो अब तुम लोग इतना समझ गए कि चलो हम लोग हाइपरवाइजर मतलब वर्चुअलाइज कर देंगे, उसमें हाइपरवाइजर लगाने के बाद हमारा जो हार्ड डिस्क है वो बन के रेडी हो जाएगा एज अ वर्चुअल मशीन, और उस इमेज से हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अब तुम लोग उसमें पता चल गया कि यार इसमें तो दिक्कत है कि अगर मान लो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़े, अगर कोई एक डिस्क साइज को मेरे को इसमें से कम करना है, उसमें ज़्यादा करना है, हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डॉकर को बोलते हैं advanced version of virtualization। एडवांस्ड वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये क्या करता है, अब वो समझता है कि ये करता क्या है एग्जैक्टली ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये क्या करता है हमारा डॉकर, पहले डॉकर समझते हैं क्या है। जो डॉकर है ना, डॉकर इज बेसिकली अ कंपनी। डॉकर इज अ फ्री कंपनी, बस इतना समझ लो। फ्री कंपनी को ऐसे बोल सकते हो कि ओपन सोर्स फ्री प्लेटफॉर्म है। डॉकर इज जस्ट अ कंपनी, और जो चीज हम लोग इंस्टॉल करते हैं हमारे मशीन्स पे, दैट इज नोन एज डॉकर इंजन। डॉकर इंजन, ठीक है। डॉकर क्या कहता है, डॉकर कहता है कि हम आपको जो इमेज है ना, जो हम लोग इमेज बनाते हैं या फिर जो इमेज दैट वी क्रिएट, वी मेक इट अ लाइट वेटेड इमेज। हम लोग लाइट, स्पेलिंग देख लेना यार, यही है क्या? अरे सॉरी, लाइट का LIGHT होगा। ठीक है, लाइट वेटेड इमेज ये कहता क्या है? लाइट वेटेड इमेजेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ एक हार्डवेयर सेटअप है, उसके ऊपर मैं OS डिस्क लगा देता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर है तो पक्का उसके ऊपर मेरा कुछ फिजिकल मशीन है तो उसका कुछ OS होगा। अगर तुम इसके ऊपर डॉकर इंजन को तुम अगर डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो, ठीक है, देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल लाइट वेटेड इमेजेस। ठीक है, मल्टीपल लाइट वेटेड इमेजेस। ठीक है, अगर मैं इसे लाइट वेटेड इमेजेस के लाइट वेटेड इमेजेस का मतलब ये हो सकता है दैट आई कैन स्विच द साइजेस बिटवीन ऑल दिस इमेजेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लो 70 MB का मेरे को रिक्वायरमेंट है, ये सब इतने लाइट वेटेड होते हैं। ये मान लो ये 700 MB लिया, दिस कैन टेक 100 MB। ऐसे ऐसे तुम लोग मल्टीपल लाइट वेटेड इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, अब उस लाइट वेटेड इमेजेस को तुम यू कैन मैनेज इट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा लाइट वेटेड होता है। लाइट वेटेड मतलब ये बस एक तुम्हारा एक इमेज रहेगा जिससे तुम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन डू दिस स्टफ्स आफ्टर इंस्टॉलिंग वेरियस पैकेजेस ओवर हियर। और तुम उस कंटेनर, उसे कंटेनर बोला जाता है, या फिर उस इमेज को यू कैन डायरेक्टली send it to anywhere, for example with all the dependencies installed. So that's the use of docker। ठीक है, इसका तुम अगर डेफिनेशन चाहते हो कि डॉकर होता क्या है, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन।
just write it down. Docker is an open source platform. Docker is an, कोई लिख रहे हो क्या? Docker is an open source platform that enables us to create, deploy, and manage applications inside lightweight and portable containers. ठीक है, अब ये कंटेनर क्या है? A container is like a small package. ये एक small package की तरह होता है that includes everything. ये कंटेनर के अंदर that includes everything our application needs to run. ठीक है, इसके अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें चाहिए हमारा एप्लीकेशन को रन कराने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कोड तो चाहिए, रन टाइम लाइब्रेरीज चाहिए और सिस्टम टूल्स चाहिए कुछ हमें. मान लो ये इसी का डिपेंडेंसी था ना, तो हम एक लाइट वेटेड इमेज बनाए, उस इमेज से हम लोगों ने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में हमने सब कुछ डाल दिया, और ये जो कंटेनर्स होता है ना, ये आइसोलेटेड होता है फ्रॉम होस्ट सिस्टम. ठीक है, जो हमारा होस्ट सिस्टम होता है उसमें कंटेनर्स ये आइसोलेटेड रहता है, तो ये हमारा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है एंड इट मेक्स इट इजियर टू रन एप्लीकेशन रिलायबली अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट. ये होता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डॉकर. ठीक है, चलो अब एक तो डॉकर से हमारा क्या क्या इश्यूज रिजॉल्व हुआ. एक तो हमारा कंसिस्टेंसी आ गया, अक्रॉस प्लेटफॉर्म हम इसे चला सकते हैं. पोर्टेबल होता है, हमने बताया ये पोर्टेबल कंटेनर होता है, तो ये पोर्टेबिलिटी में भी आ जाता है. ये एक एफिशिएंट होता है. एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि डॉकर कंटेनर शेयर दी होस्ट सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, मेकिंग देम लाइट वेट. वो लाइट वेट होता है इसलिए वो एफिशिएंट होता है. आइसोलेशन मतलब ये ना इन्वायरमेंट से आइसोलेटेड रहता है. ठीक है, कंटेनर्स प्रोवाइड अ सिक्योर एंड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन टू रन, preventing interface between different applications on the same host. On the same time, it is also scalable. ये स्केलेबिलिटी को भी हम लोग इसमें ये फीचर एडिशन कर सकते हैं. चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. मैंने टॉपिक नहीं, वी विल बी मूविंग ऑन मोर टुवर्ड्स द बेसिक सेटअप्स एंड ऑल. तो एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर द बेसिक सेटअप ऑफ डॉकर. उसके बाद हम लोग इसके बारे में और भी फर्दर टॉपिक्स है, इसमें डॉकर इंजन है, डॉकर इमेजेस है, डॉकर कंटेनर्स है, तो वो सब हम लोग देखेंगे. चलो एक काम करते हैं, अपने अज्योर पोर्टल पे चलते हैं. सब लोग फॉलो करना मेरे को कि हम क्या क्या कर रहे हैं. आई गो टू द वर्चुअल मशीन्स. पहले देख लेते हैं हमारे पास कुछ एक रिसोर्स ग्रुप है क्या. प्राइमरी RGASR, ये कौन सा है, छोड़ो, लीव इट. मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, मैं उसे नाम देता हूँ डॉकर RG. ईस्ट यूएस में डिप्लॉय करते हैं. नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट. क्लिक ऑन क्रिएट. चलो रिसोर्स ग्रुप बन गया. चलो इस रिसोर्स ग्रुप में एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं हम लोग. ठीक है, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. डॉकर RG. इस वर्चुअल मशीन का नाम रखेंगे हम डॉकर VM. इसे उबंटू ले लेना, ईस्ट यूएस ले लेना, ऐसे कर देना. पासवर्ड पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन सिलिकन डाल दो यूजर नेम में, एंड पासवर्ड में पासवर्ड @123. सेम यहाँ भी कर दो, पासवर्ड @123, और पोर्ट्स अलाउ कर दो, HTTPS अलाउ कर दो. क्लिक नेक्स्ट ऑन डिस्क, नेक्स्ट ऑन नेटवर्किंग. ये सब कुछ खुद बना लेगा. डॉकर VM नेट बना लिया, एक खुद का एक पब्लिक IP भी यहाँ लोड कर रहा है. ठीक है, चलो पब्लिक IP बना दिया. क्लिक नेक्स्ट ऑन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस्ड, टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट. चलो वेट करते हैं इसका बनने के.
चलो क्लिक ऑन क्रिएट। Wait for the deployment. चलो डिप्लॉयमेंट हो गया, इस पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक उबंटू वर्चुअल मशीन रेडी हुआ है। क्लिक ऑन कनेक्ट। -i -p पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन यस, पासवर्ड डाल देते हैं। सो वी आर इनसाइड आवर वीएम नाउ, जिसका नाम है डॉकर वीएम। ठीक है, मैं पहले सुपर यूजर बन जाता हूँ एंड मैं रूट डायरेक्टरी में चलता हूँ। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं कि इसमें डॉकर इंस्टॉल्ड है क्या। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं डॉकर -- वर्जन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डॉकर कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसे डॉकर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस डॉकर इंजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होता है sudo, अच्छा हम तो सुपर यूजर हैं ही, तो apt update and apt install docker.io। ये उबंटू पे डॉकर इंस्टॉल करने का कमांड है। क्लिक ऑन एंटर। वेट फॉर इट। यस करो। ये हमारा अभी डॉकर इंजन सेटअप हो रहा है हमारे वर्चुअल मशीन पे। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्जन आया क्या हमारे पास, डॉकर का वर्जन आया क्या। अब देखो सब लोग देख पा रहे हो डॉकर वर्जन कितना है, 20.10.21। बिल्ड क्या है, ये इतना पे बिल्ड है, उबंटू पे इतना बिल्ड है। एवरीवन क्लियर। अब हमारा डॉकर यहाँ इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब डॉकर इंस्टॉल तो हो गया है, तो हम डॉकर को स्टार्ट भी कर देते हैं अपने एंड से। तो जनरल हम लोग इस कमांड को चलाते हैं, system ctl स्टार्ट डॉकर और system ctl इनेबल डॉकर। ठीक है, फिर से डाल देते हैं system ctl इनेबल डॉकर। चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो हमारा डॉकर तो सेटअप हो गया। ठीक है, हम एक अलग से एक और टैब खोलते हैं जिसमें हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे ऑफ द सेम वीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चलते हैं अपने वीएम के अंदर, सेम वीएम। ठीक है, बस मैं दूसरे शेल पे या फिर दूसरा टैब पे मैं वैसे बस देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आई एम जस्ट मूविंग इनटू इट। -p
चलो, दोनों मेरा डॉकर वीएम है। दिस इज माय फर्स्ट टर्मिनल। इसमें हम लोग मोस्टली अपने सारे कंटेनर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई कंटेनर है। तो उसके लिए लिखेंगे डॉकर कंटेनर ls, ठीक है। तो यहाँ देखो कि कंटेनर आईडी में कुछ नहीं आया, इमेज में कुछ नहीं आया, कमांड में भी कुछ नहीं आया, क्रिएटेड स्टेटस में कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि क्या हमारे पास इमेज है, कोई इमेज अवेलेबल है क्या। डॉकर इमेज ls। चलो, इसके पास डॉकर इमेज भी नहीं है अभी तक। इमेज मतलब क्या, कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पास है ही नहीं। इस डॉकर के पास कोई हमने इमेज अभी तक बनाया ही नहीं है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये तो देखो, ये रहा हमारा डॉकर कंटेनर ls। मतलब कोई भी करंट एक्टिव स्टेट में अगर कोई डॉकर कंटेनर यहाँ पर मेरा है तो यहाँ पे मेरे को कंटेनर आईडी में दिखा देगा। लेकिन अब हमारा तो कंटेनर यहाँ बना ही नहीं है। बट स्टिल सपोज यू वांट टू कंफर्म कंटेनर डॉकर कंटेनर डॉकर कंटेनर ls -a, ठीक है। ये हाइफन ए करने से अगर मान लो कोई एक एग्जिस्टिंग डॉकर था जो अभी स्टार्ट होके बंद हो गया, कंटेनर अगर कोई स्टार्ट होके बंद हो गया ना, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा ls a करने से। लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक इमेज लेके आएंगे। इमेज मतलब क्या होता है, इमेज मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आना है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा डॉकर कंटेनर रन उबंटू, ठीक है। डॉकर कंटेनर रन उबंटू। मैं बोलता हूँ कि उबंटू इमेज लेके आऊं। अरे यार, स्पेलिंग चलो, यहाँ पे देखो, इसने एक ना इमेज डाउनलोड किया, नया इमेज डाउनलोड किया उबंटू लेटेस्ट। ये कहाँ से किया, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। ये कहाँ इसे मिला होगा। तो हम चलते हैं अपने डॉकर हब पे, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है डॉकर, देखो hub.docker.com। यहाँ पे सब लोग आना, अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है, अकाउंट बना लेना। अब तुम यहाँ पे आके देखोगे ना, तो इसके पास पाइथन, उबंटू, ऐसे बहुत सारे डॉकर ये डॉकर हब्स बने हुए हैं, ठीक है। एक्सेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ कंटेनर इमेजेस, ठीक है। तो इसने अभी हमने जैसे यहाँ पे कमांड डाला कि डॉकर कंटेनर रन उबंटू, इसने देखा कि क्या हमारे पास उबंटू इमेज, एक लाइटवेट इमेज हमारे लोकल मशीन पे है क्या, लोकल मशीन क्या हमारे वीएम पे है क्या। तो इसने बोला कि इसके पास तो एक लाइटवेट इमेज नहीं है। तो इसने क्या किया, लाइब्रेरी/उबंटू से, मतलब इस लाइब्रेरी/उबंटू से इसने सबसे लेटेस्ट वाला ऑफिशियल इमेज, डॉकर ऑफिशियल इमेज उबंटू, ये उबंटू जैसे जैसे बताया होगा, ठीक है। ये इसने यहाँ से क्या किया ना, यहाँ से इसको पुल किया और बोला कि भाई अब मैं तेरे पास एक नया इमेज लेके आया, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर उबंटू लेटेस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट दूसरे वाले टर्मिनल पे और देखते हैं कि क्या हमारा कुछ डॉकर कंटेनर बना क्या। तो हम कॉपी करते हैं इसे, कहाँ गया, इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या हमारा कुछ कंटेनर है क्या। देखो, हमारा तो कंटेनर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने वहां तो बनाया कुछ उबंटू करके। तो हो सकता है कि वो बन के बंद हो गया हो। -a करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कंटेनर आईडी, इमेजेस नेम, कमांड, क्रिएटेड, स्टेटस, ठीक है। तो जो मेरा कंटेनर आईडी है, कंटेनर आईडी इज समथिंग FFE, ये उबंटू है, ये क्रिएटेड हुआ अ मिनट अगो, और वो स्टेटस भी क्या हो गया, उसने एग्जिटेड अबाउट अ मिनट अगो। मतलब हमने जब ये कमांड रन किया तो हमारा एक कंटेनर बना और वो बन के बंद हो गया। उस बनने का रीजन क्या था कि हमने वहां पे उबंटू एक लाइट वेट इमेजेस को हमने वहां से कॉपी करके लाया। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम इमेज भी करें, डॉकर कंटेनर इमेज, सॉरी डॉकर इमेज ls करें, तो हमारे पास अब एक इमेज तो है जो कि हमने डाउनलोड किया है, जिसका नाम है उबंटू
टैग इज लेटेस्ट क्रिएटेड 3 वीक्स अगो। 3 वीक्स अगो मतलब ये जो इमेज जो हमारे रिपोजिटरी में होगा ना, हमारे डॉकर रिपोजिटरी में और डॉकर हब में, वो 3 वीक अगो ही मतलब कि वो लेटेस्ट बनाया गया होगा। उसका साइज कितना है 77 MB। ये देखो एक लाइट वेटेड इमेजेस है, ठीक है। तो चलो अब हमने तो उबंटू को इंस्टॉल कर लिया, अब हम लोग कुछ कुछ कमांड रन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कमांड रन करते हैं डॉकर कंटेनर रन उबंटू स्लीप 60। इससे क्या होता है, पहले कमांड को समझते हैं कि ये एक डॉकर कंटेनर बनाएगा उबंटू इमेज के साथ और उसे 60 सेकंड के लिए स्लीप कर देगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा टर्मिनल है ये लॉक हो गया, ठीक है, ये टर्मिनल लॉक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंटेनर का लिस्टिंग देखते हैं कि कुछ कंटेनर बना है क्या। ये देखो एक कंटेनर नया बना है F71 के नाम पे, ये इसमें भी उबंटू इमेज है, इसमें कमांड स्लीप 30 डाला गया। स्लीप 30 मतलब ये 11 सेकंड पहले चला है और ये अभी तक चल ही रहा है। फिर से मैं करता हूँ ls, अभी देखो ये 28 सेकंड, ये भी अभी तक ये 28 सेकंड तक चल रहा है। ये कब तक चलेगा, ये 60 सेकंड तक चलेगा और ये तब तक मेरे को ये टर्मिनल लॉक करके रख देगा। चलो वेट करते हैं, 1 मिनट का वेट करते हैं। चलो 42 सेकंड्स हो गया, देखते रहते हैं। इधर अभी तक मेरा रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से क्लिक करते हैं, चलो 52 सेकंड्स हो गया है, अब शायद 56 सेकंड हो गया। अब देखो अब ये नेक्स्ट 4 सेकंड में ये मेरा जो टर्मिनल है ना, ये मेरा देखो रिलीज हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 60 सेकंड तक मेरे को लॉक करके रख दिया इनसाइड माय कंटेनर, जो भी मेरा नया कंटेनर बना। अब देखो अभी तक ये स्टेटस था, अब 56 सेकंड, अब इसका स्टेटस हो जाएगा एग्जिटेड, मतलब ये कंटेनर चला भी और बंद भी हो गया। तो यू कैन फाइंड ऑल दिस कंटेनर लिस्ट फ्रॉम हियर, डॉकर कंटेनर ls-a, ठीक है। ls क्या करता है, डॉकर कंटेनर ls क्या करता है, वो जो एक्टिव कंटेनर से वही देता है, लेकिन जो ls-a होता है कि जो कंटेनर डेड भी हो गया या फिर जो बंद भी हो गया, वो भी उसका भी मेरे को वहां पे डिटेल्स निकाल के देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉकर कंटेनर रन उबंटू। ये स्लीप 20 हो गया, इसी तरह स्लीप 60 होगा, ठीक है। स्लीप 20 मतलब कि 20 सेकंड के लिए हो जाएगा। अब तुम चाहते हो कि ये जो तुम्हारा टर्मिनल है वो लॉक ना हो, तो लॉक नहीं होने के लिए हम लोग सेम यही करते हैं, सेम कमांड रन करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिटैच मोड, ठीक है। इसमें बस -d दे दो, रन के बाद एक हाइफन स्पेस -d, मतलब वी आर रनिंग इट इन अ डिटैच मोड, ठीक है। और इसे 20 सेकंड के लिए स्लीप कर दो। फिर भी यू विल सी दैट देखो ये कंटेनर तो बना है एंड आई एम स्टिल एक्टिवली यूजिंग दी व्हाट डू यू से यूजिंग दी टर्मिनल। अब यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी दैट हमारा एक कंटेनर यहाँ बना हुआ है दैट इज क्रिएटेड 30 सेकंड्स अगो एंड इट्स स्टिल अप। ये 20 सेकंड तक चलता रहेगा। 18 सेकंड, अब वेट करते 2 सेकंड, अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सी देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये 20 सेकंड के बाद ये डॉकर कंटेनर वो जो था वो बंद हो गया, ठीक है। अब हम ls- नहीं करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये कंटेनर बना था और ये बंद भी हो गया, ठीक है। एवरीवन क्लियर कि हम लोग कैसे कंटेनर्स चेक करते हैं हमारे अपने इस पे, ठीक है। अब एक नया कमांड देखते हैं, ठीक है। ये तो बस कैसे क्रिएट होता है, कैसे बंद होता है। तो अब एक काम करते हैं, एक फिर से कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। एक फिर से कंटेनर बनाते हैं और इसे स्लीप कर देते हैं 60, ठीक है। तो चलो अब मेरा एक एक्टिव कंटेनर है जो अभी चल रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखो ये दिस इज एक्टिव कंटेनर जो अभी ये अप है। अगर मेरे को एक्टिव कंटेनर को बंद करना है या फिर स्टॉप करना है, मैं कैसे स्टॉप करूंगा, इसका आईडी देख लेते हैं क्या है। इसका आईडी 2A92 जितना भी है, कोई नहीं, हमको बस पहला 2 आईडी भी अगर याद रहे तो मोर देन सफिशिएंट। 2A9 हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉकर कंटेनर स्टॉप
क्या था आईडी, क्या था 2A9। यार ये स्पेलिंग ना मेरे को एक दिन डॉकर कंटेनर टॉप आईडी क्या था 2A9। ये देखो ये 2A9 को स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर मान लो हम लोग फिर से एक कंटेनर बनाते हैं, और उसे स्लीप 60 कर देते हैं, तो हमारा जो अभी जो नया डॉकर बना होगा उसका आईडी पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये है 29C66। ठीक है, अब इसे बंद कर देते हैं, 29C। अब इसको एंटर करने से अब देखते हैं क्या बोलता है ये। अच्छा, इसने बंद कर दिया, देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक चलाते हैं। ठीक है, लॉन्गर पीरियड मतलब इसे 120 सेकेंड्स तक चलाते हैं। ठीक है, 55F करके ये जो आईडी बना ना, इसी को स्टॉप करते हैं। $55 वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे कंटेनर को स्टॉप करने का ये कमांड होता है, डॉकर कंटेनर स्टॉप 55F। अगर मान लो मेरे को डॉकर कंटेनर को रिमूव करना है, अगर इस कंटेनर को हमारे इस लिस्ट से ही रिमूव करना है कि तुम यहाँ पे कंटेनर रहो ही नहीं, तो उसके लिए कमांड होता है डॉकर कंटेनर rm एंड यू कैन पास ऑन दी आईडी। मान लो मेरे को ये 55F को रिमूव करना है। अब देखो हमारे पास ये देखो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे अगर ls करोगे, ls-a करोगे, वो 55F यहाँ पे कहीं दिखेगा ही नहीं। सो दीज आर दी ओनली अवेलेबल कंटेनर्स जो अभी हमने बनाया है, 29C, 2A, EDD, 5F71 और FFE। दीज आर दी कंटेनर्स जो बन के अभी स्टेटस ये बंद हो चुका है, दीज ऑल एग्जिटेड। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक नया कंटेनर बनाते हैं और उसे स्लीप कर देते हैं 120। तो इसका कंटेनर का आईडी आया A98। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली हम रिमूव करना चाहते हैं, ये कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में है। ठीक है, A98। अब ये देखो ये क्या बोला कि यू कैन नॉट रिमूव अ रनिंग कंटेनर A98। ठीक है, स्टॉप द कंटेनर बिफोर अटेम्प्टिंग रिमूवल। तो हमारे इंडस्ट्री में एक जनरल प्रैक्टिस है कि कोई भी कंटेनर अगर रनिंग स्टेट में है तो उसे हम कभी भी डायरेक्टली रिमूव नहीं करते हैं। उसके लिए हमेशा उसे पहले एक स्टॉप स्टेट में लेके जाते हैं, देन ओनली वी रिमूव इट। लेकिन फिर स्टिल इफ सपोज यू वांट टू रिमूव इट, you can directly place the ID and place it over -F। F stands for force, मतलब फोर्सफुली तुम उसे रिमूव करते हो। देखो अब रिमूव हो गया। so this is how the containers get removed। ठीक है, पहले क्लियर करता हूं मैं अपने। ठीक है, और यहाँ भी क्लियर करता हूं। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने डॉकर्स बने हुए हैं। 29C है, 2A92 है, EDD है। एक काम करते हैं, सबको रिमूव करते हैं, ठीक है। सबको रिमूव करने का क्या क्या कमांड है, यू कैन जस्ट राइट डॉकर कंटेनर rm और सबके आईडीज पास कर दो। क्या क्या आईडी है, 29C, या फर्स्ट 2 लेटर्स का याद रखो, 29 2A ED, 29 2A ED, और क्या था F7 एंड F7
एंड FF एंटर करोगे तो ये देखो सारे डॉकर्स जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पर अगर -A भी करता हूँ, LS -A भी करता हूँ, तो देखो हमारे पास कोई भी डॉकर यहाँ पे बना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक भी कंटेनर नहीं है। नाउ वी गो बैक टू आवर टर्मिनल। अभी हम लोग कंटेनर बनाते हैं और उस कंटेनर के अंदर चलते हैं। कंटेनर मतलब क्या? कंटेनर मतलब एक वर्चुअल मशीन। अब इस वर्चुअल मशीन से हम लोग एक लाइट वेटेड इमेज के थ्रू एक वर्चुअल मशीन के अंदर चलते हैं। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? तो हम लोग कमांड रन करते हैं, डॉकर कंटेनर रन आई वांट टू रन इट इन इंटरैक्टिव मोड। ये इंटरैक्टिव मोड के लिए होता है -IT इंटरैक्टिव मोड उबंटू /bin/bash। अगर तुम लोग ये कमांड रन करते हो तो तुम लोग डॉकर कंटेनर के अंदर चले जाओगे। अब देखो अभी था root@docker VM, अब मैं आ गया हूँ root@6769। अब देखो क्या यही मेरा डॉकर रनिंग है क्या? अभी ls करता हूँ, सी 6769 और मैं उसी डॉकर के कंटेनर के अंदर हूँ 6769। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मान लो मेरे को कंटेनर से बाहर आना है, देन व्हाट इज द कमांड? तो अगर कंटेनर से बाहर आना है ना तो उसे रनिंग स्टेट में रहने देना है, और कंटेनर से बाहर आ रहा है देन यू कैन टाइप Ctrl+P+Q। ठीक है, Ctrl+P+Q से तुम लोग इसके अंदर इसके बाहर आ सकते हो। मतलब अभी जैसे कि मैं अभी कंटेनर के अंदर आ गया हूं, तो मैं कंटेनर के बाहर आने के लिए यहाँ पे लिखूंगा Ctrl+P+Q। सी, अब मैं बाहर आ गया ना, डॉकर VM पे वापस आ गया, और लेकिन मेरा डॉकर अभी भी रनिंग स्टेट में है। ls करूं, देखो डॉकर अभी भी मेरा रनिंग स्टेट में है 6769। ठीक है, अब मान लो मेरे को उसके अंदर फिर से जाना है, तो उसके लिए कमांड होता है docker docker execute 67, जिसका बस आईडी पास कर दो /bin/bash। देखते हैं ये कमांड रन करता है कि नहीं। तो पहले सर्च करते हैं कि हाउ टू वी एंटर अ डॉकर कंटेनर, इस पे चलते हैं। अच्छा, IT docker execute -IT कंटेनर आईडी दे दिया मैंने 67। अब इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, देखो आ गए हमने इसके अंदर। तो फॉर एंटरिंग अ एग्जिस्टिंग डॉकर यू कैन यूज दिस कमांड docker execute -IT 67 is the container ID name /bin/bash। अब मैं इसके अंदर आ गया। अब तुम्हें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, अब तुम इस कंटेनर के अंदर कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम इसके अंदर कुछ भी व्हाट डू यू से यू कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन। तुम इसे वेब सर्वर बना सकते हो, इसमें अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। इस कंटेनर के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल इट इनसाइड दिस वन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, व्हाट डू यू से, आई कैन इंस्टॉल वेब सर्वर। ठीक है, तो ये एक उबंटू है, तो हम लोग पहले ये apt get अपडेट करते हैं। इसके सारे पैकेजेस को पहले अपडेट कर लेते हैं। चलो, ये हमने कर दिया, यहाँ पे रीडिंग पैकेजेस लिस्ट डन। ठीक है, अब हम लोग इसमें करते हैं apt
गेट इंस्टॉल, क्या था हमारा वेब सर्वर का नाम, क्या था? अपाचे 2। ठीक है, वेट फॉर इट। क्लिक ऑन यस। अब देखो, अब इसके अंदर चलते हैं हम cd के अंदर, var के अंदर, www के अंदर html। अब यहाँ पे देखो कि उसके पास एक index.html होगा। अगर हम cat index.html करें, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे echo लिख देते हैं, echo hello container, hello container। ठीक है, और इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ index.html पे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ cat index.html, cat index.html। ठीक है, तो ये मेरे बोल रहा है कि हेलो कंटेनर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ vi index.html तो क्या होना चाहिए, बताओ मेरे को। vi index.html, बताओ, अगर मैं ऐसे एंटर करूँ तो क्या Hello होगा? continue. पक्का? एनीवन Yes, एल्स? sir. एनीवन एल्स? हेलो कंटेनर ही है। क्या आया? क्या आया? Command not found. क्यों आया vi कमांड नॉट फाउंड? कोई बता सकते हो? PI एडिटिंग जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ अब कंटेनर में। इन जनरल तो होता ही है ना, उबंटू उबंटू का इमेज है तो उसमें तो होता ही है। HTML एक्सटेंशन है नहीं यार, HTML एक्सटेंशन तो क्या हुआ, vi कमांड तो वो खोल के दे देगा मेरे को, वो तो कैसा भी फाइल खोल सकता है। और कोई बता सकते हो? कुछ गेस करो यार, मैं तब से एक टर्म यूज कर रहा हूँ। ये जो इमेज है, ये कैसा इमेज है? सर लाइट वेटेड है तो उसमें होगा नहीं ना इंस्टॉल। लाइट वेटेड इमेज है, परफेक्ट। अगर ये लाइट वेटेड इमेज है तो इसके पास जो है ना, बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क रहेगा, इसके ऊपर जो भी तुम्हें ऐड करना है तुम्हें खुद से करना होगा। ये लाइट वेटेड क्यों है? लाइट वेटेड क्यों है? लाइट वेटेड का रीजन ये है कि इट इज व्हाट डू यू से, ये लाइट वेटेड इमेजेस इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो लाइब्रेरीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब चीज इसमें नहीं है। इसमें वी एडिटर प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए लाइट है। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे अलग डिपेंडेंसीज हो, अलग अलग एडिटर्स हो, जो इसमें नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो इसलिए ये लाइट वेटेड इमेजेस है। ठीक है, इसलिए इसमें वी कमांड रन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, अब अपने दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं ना, और उसमें ना एक कमांड टाइप करते हैं, एक कमांड टाइप करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा मेरा। ठीक है, डॉकर स्टेटस, डॉकर स्टेटस, एक मिनट। ठीक है, अब तो यहाँ पे मेरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। अच्छा, अब हम इस कंटेनर को एक्सेस कैसे करेंगे? इस कंटेनर को एक्सेस कैसे करेंगे? हमारे पास जो पब्लिक आईपी अवेलेबल है, वो किसका पब्लिक आईपी अवेलेबल है? कहाँ गया मेरा क्रोम? हमारे पास वीएम का पब्लिक आईपी अवेलेबल है ना। ठीक है, अगर मैं वीएम के पब्लिक आईपी को हिट करूं तो ये क्या देगा? ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो हमारा कंटेनर बना है, या फिर जो रादर हमारा जो वेब एप्लीकेशन बना है, वो किसके अंदर बना है? एवरीवन, वो किसके अंदर बना है? डॉक्टर कंटेनर वो कंटेनर के अंदर बना है। अब भाई कंटेनर के अंदर का एक्सेस मेरे को कैसे मिलेगा? हाउ डू आई गेट एक्सेस टू माई डॉकर कंटेनर? हमें कंटेनर के उस एप्लीकेशन को उठा के हमें मान लो पब्लिकली एक्सेसिबल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है पोर्ट मैपिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वी डू
पोर्ट मैपिंग, ठीक है। अब हमें VM का IP पता है, VM का IP पता है, हम लोग बस एक पर्टिकुलर पोर्ट को मैप कर देंगे, कोई एक पोर्ट नंबर को मैप कर देंगे और वो मेरे को कंटेनर के अंदर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पोर्ट मैपिंग कैसे करते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले चलते हैं कंटेनर से बाहर चलते हैं, Ctrl+P+Q, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले सारे डॉकर पहले डॉकर लिस्टिंग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉकर है हमारे पास। डॉकर कंटेनर ls-a, ठीक है। तो हमारे पास अभी एक ही कंटेनर है 67, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। डॉकर कंटेनर rm67, इसे फोर्सफुली डिलीट कर देते हैं। चलो, अब हमारे पास कोई डॉकर कंटेनर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना पोर्ट मैपिंग करेंगे। पोर्ट मैपिंग के लिए हम लोग क्या क्या कमांड लिखते हैं वो देखते हैं। डॉकर कंटेनर रन, हम लोग एक नया डॉकर कंटेनर बना रहे हैं, इंटरैक्टिव मोड में खोलेंगे, पहले क्लियर करते हैं, क्लियर, ठीक है। डॉकर कंटेनर रन इन इंटरैक्टिव मोड IT, पोर्ट मैपिंग करना है, मतलब -p, हम अपने वर्चुअल मशीन के 3600 पोर्ट को हम अपने कंटेनर के 80 पोर्ट, हमारा HTTP पोर्ट का पोर्ट हिट कहाँ जाता है, 80 पोर्ट पे, ठीक है। हम अपने VM के पब्लिक IP के 3600 पोर्ट को हम मैप कर रहे हैं विथ पोर्ट नंबर 80 ऑफ माय न्यू कंटेनर ubuntu/bin/bash। चलो, कमांड नॉट फाउंड, कहाँ गड़बड़ किया हमने, अरे यार, डॉकर कंटेनर ठीक है, क्लिक ऑन एंटर। अब देखो, अब हमारा नया डॉकर कंटेनर बन गया जिसका नाम है, जिसका ID है D57, ठीक है। अब इस पे सब कुछ हम लोग मैप करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मैप कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, apt get अपडेट करेंगे, कुछ अगर अपडेट्स अवेलेबल है हमारे पैकेज मैनेजर में तो वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे apt get install Apache 2, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, Apache 2, click on yes, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने CD के अंदर, var के अंदर var के अंदर www के अंदर HTML के अंदर हमारा जो index.html है उसमें हम कर देते हैं echo I am from container, कंटेनर का ID क्या है, D57 समथिंग, और मैं इसे बोलता हूँ तो index.html में चले जा, index.html पे, ठीक है। अब हम cat करेंगे index.html, cat index.html, तो यहाँ देखोगे यहाँ पे है आई एम फ्रॉम कंटेनर D57 समथिंग, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं अपाचे 2 को। तो इसके लिए जो कमांड होता है दैट इज सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। चलो,
अब अपाचे 2 जो है हमारा कंटेनर के अंदर एक्सेसिबल हो गया। तो हमने कौन से पोर्ट को मैप किया था? पोर्ट नंबर 3600। तो हम अपने अगर इस पे आए और अगर यहाँ पे हम पास कर दे कि ये आईपी और इस आईपी के कौन से पोर्ट 3600 पोर्ट पे अगर तुम एंटर करो तो हमें वहां पे डॉकर कंटेनर का कंटेंट दिखना चाहिए। तो क्या ये अभी दिखेगा क्या? ये देखो रीलोड होता रहा, ये रीलोड होगा 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 और ये नहीं होगा। एनीवन विद द रीजन कि ये क्यों नहीं हो रहा है? एनीवन क्या कोई गेस भी कर सकते हो कि यार इस पे तो ये 3600 पे तो हमने सब कुछ सेटअप कर दिया है लेकिन ये 3600 खुल नहीं रहा है हमारे ब्राउजर पे। सर हमने तो स्टार्ट किया है, एनेबल तो नहीं किया। नहीं, ये कंटेनर के अंदर बस स्टार्ट करने से भी हो जाता है। सर्विस स्टार्ट अपाचे 2, ये सर्विस, ये कहाँ गया हमारा ये जो था, ये देखो ये स्टार्ट कर दिया, ये अपने आप सब कुछ कर देता है अपने एंड पे। कंटेनर अपने एंड पे ये सब कुछ कर देता है इस कमांड से, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। एनीवन विद अदर रीजन? ये देखो रन नहीं कर रहा है। एनीवन, क्या कोई भी कुछ सोच सकते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है? कोई नहीं? कुछ एनएसजी करके पढ़े थे हम लोग। इस वीएम के अभी करंट एनएसजी पे, अगर हम इसके करंट एनएसजी पे चले, नेटवर्किंग पे जाएं और इसके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे वो 3600 पोर्ट ओपन नहीं है, ये अपना खुद का 80 पोर्ट ओपन करके रखा है। लेकिन क्या कहीं पे 3600 पोर्ट ओपन करके रखा है? नहीं ओपन करके रखा है। इसके लिए हमें एक इनबाउंड पोर्ट रूल ऐड करना पड़ेगा कि सोर्स कहीं से आए, सोर्स का कोई भी पोर्ट रेंज रहे, डेस्टिनेशन एनी रहे, सर्विस कस्टम रहे और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हम बोलते हैं 3600। ठीक है, और प्रायोरिटी कुछ भी दे दो, प्रायोरिटी कुछ भी दे दो और क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब इधर ये सेव होगा। अब इधर वेट करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आएगा। लेट इट सेव ओवर देयर। लेट इट सेव। सेव हुआ क्या? चलो सेव हो गया है। कहाँ गया हमारा? क्लिक ऑन रिफ्रेश। चलो 340 पे कहाँ गया? हाँ, अलाउ एनी कस्टम 3600 पोर्ट पे हम लोग कुछ भी अलाउ कर रहे हैं विद द प्रायोरिटी ऑफ 350। वेट करते हैं कब तक एनर्जी अप्लाई होता है। अपने एंड से भी सब लोग देखो तो कुछ आ रहा है क्या? मैं चैट सेक्शन पे इस आईपी को भेज देता हूँ। अगर नहीं आएगा तो हमें एनर्जी पे ही कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। See, I have sent you a link http 20.124.110.21। आया क्या किसी का? Yes, sir. क्या आ रहा है? I am from container. ठीक है, सबका आ गया। जैसे हमने एनएसजी कॉन्फ़िगर किया, हमने उसके 3600 पोर्ट को ओपन कर दिया, तब इसे पता चल गया कि अच्छा ये आईपी के इस पोर्ट पे कुछ कंटेनर मैप्ड है। ऐसे ही हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक से लेवल पे हमने किया है, बेसिक से लेवल पे किया है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ऑन अ वेरी ग्रास रूट लेवल हमने ऐसा किया, हमने पोर्ट मैप कर दिया। ठीक है, अब इंडस्ट्री में कैसा होता है दैट यू विल गेट टू नो मोर इन द फर्दर क्लासेस। लेकिन अगर तुम्हें जानना था कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के पोर्ट पे हमने कंटेनर मैप किया, उसमें अपना एक एप्लीकेशन डाला, फॉर एग्जांपल index.html डाला, अभी भले ही इसमें बस एक स्टैटिक कंटेंट है, हो सकता है उसमें कुछ डायनेमिक कंटेंट हो, तो ये ऐसे मैप किया जाता है। ठीक है, तो चलो एक और पोर्ट को मैप करें, एक और पोर्ट को मैप करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? कमांड पहले यहाँ इस पर्टिकुलर कंटेनर से निकलते हैं, कंट्रोल PQ, चलो एंटर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पोर्ट करते हैं, फिर से एक नया कंटेनर बनाते हैं। इस टाइम कौन से पोर्ट को मैप करना चाहते हैं बताओ? 3600 तो हमारे पास वो असाइन हो गया एक कंटेनर को, तो 3800 करते हैं। ठीक है, चलो अब स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, डॉकर कंटेनर रन IT-P 3800 पोर्ट को पोर्ट 80 से मैप करो हमारे नए कंटेनर का। क्लिक ऑन ये। अब देखो मैंने पोर्ट इसके अंदर आ गया 1E2। ठीक है, अब इसके अंदर मैं करूँगा apt get
अपडेट। ठीक है, अब मैं इंस्टॉल करूंगा ऐप गेट इंस्टॉल Apache 2, click on yes. Wait for a moment. ठीक है, चलो ये हो गया। CD के अंदर वायर के अंदर HTML के नहीं www के अंदर HTML के अंदर, ठीक है, हम कर देते हैं echo I am from कंटेनर। कौन सा कंटेनर है ये? 1E2 डॉट डॉट डॉट, इसे मैं डाल देता हूँ index.html पे, index.html पे, और करता हूँ सर्विस Apache 2 स्टार्ट। चलो, हमने कौन सा पोर्ट मैप किया है? 3800। तो अब 3800 अगर मैं इसे इस 3800 यहाँ पे डाल दूं, मतलब इस पर्टिकुलर VM का 3800 पोर्ट मैप करूं, तो ये फिर से हमें वो NSG के कारण यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो अगेन यू कैन गो टू दी NSG, यू कैन ऐड एन इनबाउंड पोर्ट रूल कि अगर कुछ भी सोर्स आए, कहीं से भी आए, मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अगर 3800 रहा, प्लीज अलाउ इट। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है। अभी ये D57 है, हमारा आना क्या चाहिए था? हमारा आना चाहिए था 1E2 3800। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये 3600 है, पोर्ट 3800। वेट करते हैं थोड़ा, एनर्जी अप्लाई होने में बोले थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम गैप है। मैं तुम्हें ये लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, देखो हमारा IP सेम रह रहा है, बस हमारा क्या चेंज कर रहा है? हमारा पोर्ट नंबर चेंज कर रहा है। हमने उसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे हमने उसे मैप किया हुआ है। चलो देखो, तो तुम लोग में से किसी का आ रहा है क्या 3800 पोर्ट पे कुछ? नो सर। अभी तक नहीं आया? मेरा तो आ गया। आ गया सर। सर ठीक है। 1E2 आया। 1E2 आया ना, 1E2 ही तो था ना Yes, हमारा नया कंटेनर, और 3600 पे था हमारा वो दूसरा कंटेनर। चलो ठीक है, अब समझ गए कि ये हमारा पोर्ट कैसे होता है। ठीक है, अब हमारा एक कमांड होता है, वो कमांड हम लोग देख लेते हैं। डॉकर स्टेटस या फिर स्टार्ट कमांड करके कुछ होता है, या फिर इंस्पेक्ट कमांड होता है कुछ। डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर। ठीक है, एक इंस्पेक्ट कमांड होता है। अगर इंस्पेक्ट करोगे एक पर्टिकुलर डॉकर को, तो तुम बहुत कुछ इंस्पेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लिखोगे डॉकर इंस्पेक्ट, तुम्हारा ये 1E2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट 1E2। तो यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत सारा चीज मिलेगा कि ये डॉकर का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है इसके। ये देखो आईडी है, क्रिएटेड है, पाथ क्या है, स्टेट क्या है, रनिंग है। ठीक है, अब तुम नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक IP एड्रेस मिलेगा। ये डॉकर कंटेनर का अपना खुद का एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, डॉकर कंटेनर का खुद अपना एक IP एड्रेस होता है। तो और ये एक प्राइवेट IP होता है। ठीक है, ये प्राइवेट IP एक्सेसिबल नहीं होता है, इसलिए जब भी तुम लोग CURL कमांड डालोगे, CURL अपने VM के अंदर से तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट IP है। ठीक है, CURL कमांड V करोगे, सी दिख रहा है, लेकिन ये प्राइवेट IP है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर मैं इसे कॉपी करके मैं अपने ब्राउजर पे पेस्ट भी करता हूँ ना, मेरे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट IP। डॉकर कंटेनर को IP तो मिला हुआ है, लेकिन एक प्राइवेट IP है।
ठीक है, इसलिए हम इसे पब्लिक आईपी के साथ हम लोग पब्लिक आईपी के साथ इसके पोर्ट को मैप कर देते हैं कि पोर्ट 80 मैप पोर्ट 80 ऑफ द कंटेनर गेट्स मैप टू वन ऑफ द पोर्ट्स दैट यू वांट फॉर द पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। ठीक है, काफी सिंपल रखते हैं आज के लिए, इतने ही पे हम रैप अप करते हैं। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग इट।